السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلا، یہ جوزہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے، جو کافروں اور نافرمان عورتوں کے لیے بدترین نمونہ ہے۔ کافر اور ضدی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر حق کا مقابلہ کرتی تھی، دعوت توحید کا مذاق اڑایا اور نبی نوح علیہ السلام کو بے تحاشا اذیت پہنچائی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ کافروں کے ساتھ طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ اے خدا، نوح علیہ السلام کی دعا کہ اے خدا تو میرے قوم کی مغفرت فرما۔ جب روئے زمین پر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگوں کے کئی خدا معاوض وجود میں آ گئے اور بشریت کفر و گمراہی کے اندھے رستے پر چل پڑی، تب اللہ عز و جل نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پھر سے صحیح راستے پر لا سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے دوسرے ہزاروں سال میں نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس وقت تک ان کی قوم میں گناہ وبا کی صورت میں پھیل گئی تھی اور لوگ کھلم کھلا اپنے فسق و فجور اور نافرمانیوں کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ظالم اور حد دھرم لوگوں کی کثرت تھی اور گمراہی و ضلالت کا دورہ تھا۔ کسی بھی نبی کو اپنے قوم کے ہاتھوں اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی نوح علیہ السلام کو قوم کے ہاتھوں پہنچی، اور ان کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آتے تھے اور اپنے مجالس میں انہیں مار پیٹ کر دھکے مار کر باہر نکالتے تھے، ان پر آوازیں کستے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود نوح علیہ السلام اپنے قوم سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری قوم نادان ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ میری قوم نادان ہے اسے معاف فرما دے۔ اور اس کے قوم کا یہ حال تھا، فما کان جواب قومہم، کہ ان کا قوم کا جواب یہ تھا کہ وہ جتنا ان کو خدا کی طرف بلاتے وہ لوگ اسے اتنا ہی دور بھاگتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ جب نوح علیہ السلام کسی شخص سے بات کرتے تھے اور اسے خدا کی طرف بلاتے تھے تو وہ کپڑے سے اپنا سر پر منہ پر لپیٹ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تھے تاکہ ان کی کوئی بھی بات سنائی نہ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیے اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے اور تیز تیز چلتے ہوئے کہتے تھے، چلو جلدی چلو، یہ آدمی جھوٹا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ شخص دیوانہ ہے۔ یوں وقت گزرتا رہا اور حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش بڑھتی چلی گئی، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ایک نسل ختم ہوتی تھی اور وہ اگلی نئی نسل سے امید باندھ لیتے تھے کہ شاید یہ میری امت مان جائے، یہ میری قوم مان جائے۔ یوں نئی نسلیں گزرتی چلی گئی، مگر ہر نئی نسل آنے والی پچھلی نسل سے زیادہ خبیث اور ضدی حد دھرم اور ظالم ہوتی تھی۔ کوئی تو یہ کہتا تھا یہ نوح علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے ہی، اور جب سے یہ یوں ہی دیوانگی کی باتیں کرتا ہے۔ اس بات کی طرف قرآن کریم میں یہ اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہ ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ قوم نوح میں سے جب کسی شخص کا وقت قریب آ جاتا ہے، وہ مرنے لگتا ہے تو اپنے بچوں اور خاندان والوں کو یہ وصیت کر کے مرتا ہے، خبردار اس دیوانے سے ہوشیار رہنا، کیونکہ میرے آبا و اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ اور یوں یہ کھوکھلی وصیت نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو اپنے کانوں پر بیٹھائے نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تھا تو اپنے بچے سے کہتا تھا، میرے بچے اگر تو زندہ رہا اور میں مر گیا تو اس بڈھے سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ دیوانہ ہے اور لوگوں کو ہلاکت کے ہاتھوں اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے لوگوں میں ان کی بیوی بھی شامل تھی اور اس قافلے کے ساتھ چل پڑی، اس کی بولتی چلتی تھی اور اس کے ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی۔ مفسرین کا کہنا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام
वाइला था या वाइला था। उसने काफिरों और मुल्हिदीन का साथ दिया। उसकी नाफरमानी की एक तस्वीर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अपने शोहर के बातों में कहा करती थी कि वह दीवाना है, उसे अकल नहीं, ऐसी बातें करता है जो किसी की समझ में नहीं आती, ऐसे चीज़ों के तरफ बुलाता है जो नामुमकिनुल उकू है और दावा करता है कि नफ़ा नुकसान पहुंचाने से कासिर है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का कोई शख्स अगर ईमान लाकर उसकी नूरानी काफिले का मुसाफिर बन जाता तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी फौरन हरकत में आ जाती थी और अपने कौम के जालिम और जाविर लोगों को जाकर उसकी इत्तला दिया करती थी, वो ताकि वो उसे मार पीट कर और इज़ा रसानी देकर उसके दीन से फेंट दे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे बहला फुसला कर गुमराह कर दे। और यही नहीं बल्कि ये वो औरत थी कि अपने शोहर और उसकी दीनी दावत कबूल करने वाले हर शख्स पर नज़र रखती थी और उसके हर बात की खबर रखती थी और कहती थी, कोशिश में लगी रहती थी कि नूह अलैहिस्सलाम के जद्दोजहद को नाकाम बना दिया जाए और उसकी नूरानी दावत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। और इसी तरह इस औरत का नाम बदबख्तों और काफिरों और महरूम लोगों में लिखा गया और ये औरत रहती दुनिया तक कुफ्र व इल्हाद का रास्ता अपनाने वाली हर औरत के लिए एक बदतरीन बेमिसाल नमूना बनकर रह गई। और जो औरत भी उसकी इख्तिदार करेगी वो नूर इलाही के इस मुजस्समा फैज़ से बहुत दूर चली जाएगी जिसकी रोशनी सिरातल मुस्तकीम तक ले जाती है। वो एक अंबिया की बीवी थी, उसके बावजूद कुफ्र की वजह से वो पीछे रह गई, तूफ़ान नूह में गर्क हो गई। कुरान करीम में इरशाद है 28वें पारे में 16वें सूरतों में है, 43 जगह आया है। और यही नहीं बल्कि कुरान में एक पूरी सूरत उनके नाम से है, यानी सूरे नूह। नूह अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा तक ज़िंदा रहे और बड़ी लंबी उम्र पाई और नबियों में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाले नबी थे और सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले और दावत हक़ के तरफ रास्ता सबसे ज़्यादा अपनाने वाले और अज़ियतें झेलने वाले नबी थे। उन्होंने अपने कौम को दिन रात दावत दी, कभी छुप कर तो कभी खुल्लम खुल्ला, कभी ऐलान शिर्क व जहालत के अंधेरों से निकाल कर, कभी हक़ व यकीन के नूर तक लाने के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा था जो उसने अपनाया ना हो। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के पूरे 900 साल तक दावत हक़ देते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। ये कुरान की आयत है सूरे अनकबूत की कि 100 वो उनमें 50 साल कम 1000 साल यानी 950 साल ठहरे। वो अपनी कौम को नसीहत करते थे और बड़ी नरमी व मुहब्बत से अल्लाह की तरफ दावत देते थे, मगर एक तरह तवील अरसा तक समझाने के बावजूद चंद लोगों के सिवा उन पर कोई ईमान नहीं लाया। हक़ ताला फरमाते हैं वमा आमना माहू इल्ला कलील। ये सूरह हुद की आयत है कि बजुज़ कलील आदमियों के उनके साथ उन पर कोई ईमान न लाया था। होना तो ये चाहिए था कि उनकी बीवी उन पर ईमान लाती, उनकी हिम्मत बंधाती, अहकाम खुदा लोगों तक पहुंचाती, उनकी पूरी मदद करती, लेकिन उसने नाफरमानी की और उसकी बदबख्ती उस पर गालिब आ गई। उसने अपने बेटे कनान को भी बहकाया और कुफ्र जलालत की राह पर गामजन हो गया और दीन व मज़हब, नीयत व अमल में अपने बाप की मुखालिफ करने लगा। तिबरी ने अपने तारीख़ में ज़िक्र किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफूस और कनान, जो तूफ़ान में गर्क होकर हलाक हो गया। इन चारों की माँ यही थी वाइला, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बुत परस्त थी। रुए ज़मीन पर सबसे बुत परस्त करने वाली कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, जो अक़ीदा तौहीद के कायल थे। उससे पहले लोग अल्लाह ताला वाहिदुल क़हार पर ईमान रखने वाले थे, न बुत परस्ती से वाकिफ़ थे और न उसकी परस्तिश के माना जानते थे। इस पर कुरान करीम की इस आयत से मिलता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यिन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला माअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासी फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह, कि एक ज़माने में सब आदमी एक ही तरीक़ पर थे, फिर अल्लाह ताला ने पूरे को भेजा, पैगंबरों को भेजा खुशी के वादे सुनाने और डराने के लिए। उनके साथ आसमानी किताबें भी ठीक तौर पर नाजिल फरमाए ताकि उनके उमूर इख्तिलाफिया में
फैसला कर सके। कौम नूह ने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया और बुतों की परस्ती शुरू कर दी और अपने लिए कई कई खुदा बना डाले। उसका ख्याल था कि यह नफ़ा नुकसान का मालिक है। उसका दावा था बुत देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि अकल भी रखते हैं। और ये भी कहा करते थे कि हमारे ये खुदा हमारी हिफाजत भी करते हैं और खुदा की ज़ात से हमें ये न्याज़ रखते हैं। सुबहान व ताला अम्मा यसिफून। लगता है नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अपने बुत और खुदाओं से बड़ा वालिहाना लगाव था। वो बजाय अल्लाह ताला की इबादत के उसकी परस्तिश किया करते थे और उन्हें मुकद्दस मानते थे। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी उनकी दावत ईमानी से मुंह फेर लिया और मक्कार फरेबी लोगों के साथ मिलकर अपने शोहर को दावत को नाकाम बनाने के लिए तरह तरह की साजिशें बनने लगी। उनके मक्र फरेब के हथियारों में से एक हथियार ये था कि वह हर तबका के लोगों को इस बात के लिए उकसाती थी कि वो उनके खुद साख्ता खुदाओं और बुतों की परस्तिश करे। अल्लाह ताला उनके इस साज को बेनकाब करते हुए फरमाते हैं, वो मकरू मकरन कुब्बारा वो क़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम। ये सूरह नूह की आयत है कि उन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने कि हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना। यह शैतानी टोला बीमार जहनों में जोश हमियत पैदा करने के लिए निकल खड़ा हुआ और बेतहाशा बुतों में से चंद बुतों को मखसूस करके ये साबित करना चाहा कि ये अजीमुशान है, ताकि लोगों के दिलों में उसका रोब और दबदबा बिठाकर अपना मकसद हासिल कर सके। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुआ वला यऊस वला यऊक व नसरा। ये भी सूरह नूह की आयत है। वना वदा और सुआ और यऊस और यऊक और नस्र को छोड़ना। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू में कुछ अलामतें ज़मीन में गाड़े जो उनके ज़िंदगी कुछ मुकद्दस गैबी कुव्वतों की तरफ निशानदही करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन अलामतों को तो भूल गए और बूतों की परस्ती शुरू कर दी। उनमें से सबसे मशहूर वो 5 बूत हैं जिनका जिक्र आयत में आया है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इन 5 बूतों के असल के बारे में कहते हैं कि ये नाम नूह अलैहिस्सलाम के कौम के चंद नेक आदमी के थे। जब ये लोग गुजर गए यानी मौत हो गई, वफात पा गए, तो शैतान ने इनके कौम के दिल में डाला कि उनकी यादगार के तौर पर उनकी उन पूजागारों पर जहां वो अक्सर उठा बैठा करते थे उनके नाम की अलामतें खड़ी कर दें ताकि लोग उन्हें भुला न सकें। उन्होंने ऐसा ही किया मगर उसके परस्तिश नहीं की। मगर जब लोग भी ख़त्म हो गए तो उनके बाद आने वाली नस्ल ने उन निशानियों के परस्तिश शुरू कर दी। लेकिन इब्न अब्बास रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस तरह ये बुत परस्त जो पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम में राइज था उसके बाद अरब कौम में भी आ गए। अस्सावी ने अपने तफसीर में उन बुतों का जिक्र करते हुए फरमाया ये बुत परस्त उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीमुशान माने जाते थे और इसलिए उनका जिक्र इतने एहतमाम से किया गया। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे, वद्दा, सुआ, यऊस और यऊक और नस्र, और ये पांचों बहुत आबिद व जाहिद थे। उनमें से जब एक का इंतकाल हो गया तो लोग बहुत गमज़दा हुए। तो शैतान ने उनसे कहा, अरे तुम लोग फ़िक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, हूँ बहू उन जैसे तस्वीर बनाता हूँ। जब मैं तुम उसे देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगी। लोगों ने कहा ठीक है। उस मलऊन ने शैतान ने मस्जिद में जाकर वही उस आदमी की तस्वीर बनाई, पीतल और शीशे वगैरह के ज़रिए बनाई। फिर उसके बाद दूसरे शख्स का इंतकाल हो गया तो शैतान ने उसे उसी तरह की भी तस्वीर बना डाली। यहाँ तक कि दूसरे शख्स, तीसरे शख्स इसी तरह मरते गए, इंतकाल होते गए और शैतान उसकी तस्वीर बनाते गए। वक्त गुजरता गया, साथ साथ लोग खुदा की इबादत करना भूल बैठे और शैतान ने उन लोगों से कहा कि ये बात भाई तुम लोग किस चीज़ की इबादत क्यों नहीं करते? तो वो बोला, अपने आबा व अजदाद के माबूदों की इबादत करो। क्या तुमने अपनी इबादत गाहों में उनकी तस्वीरें नहीं देखी? इसी तरह उन तस्वीरों की परस्तिश शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, वो न छोड़ना तुम अपने माबूदों को। उनके कौम ने कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना। अपने माबूदों को न छोड़ने की
अपने माबूदों को न छोड़ने की बड़े बड़े सरकश व जाबिर लोगों की तरह से था, जो उनके कुफ्र व तानत मकर व फरेब और शैतानी जहनत की खुली दलील थी। ये लोग खैरख्वाही का लुबादा ओढ़कर कमज़ोर और नादान लोगों को झूठे माबूदों की परस्तिश पर मजबूर करते थे। अल्लाह अज़्ज़वजल उन लोगों की यह खसलत बयान करते हुए फरमाते हैं, वो कौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, कि बेशक ये लोग कौम नूह जो है यही हाल हो चुका था, बस वो बड़े नाफरमान लोग थे। अल्लाह ताला का एक जगह इरशाद है कि वह कौम नूह इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अदक़ा। ये सूरह नज्म की आयत है कि अल्लाह ताला कौम नूह को हलाक किया, बेशक वो सबसे बड़ा जालिम और शरीर थे। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मुस्तकिल काफिर और मुजरिमों के साथ शरीर और फितने के रास्ते पर अंधों की तरह बढ़ती चली गई और अपने शोहर की राह पर जाल बिछाती गई, उनके दीनी दावत के राह पर रुकावट बनती गई। नूह अलैहिस्सलाम उसकी परवाह किए बगैर हुक्म इलाही के तकमील में लग गए, लोगों को दावत दीन रहते गए, बल्कि वो अपनी बीवी को भी उस कौम को भी हर रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे। दावत हक़ का आगाज़ नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के सरदारों को दावत देते हुए पुकारा, या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। यह सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 59 है। ए मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, काबिल नहीं। मुझको तुम्हारे लिए एक बड़ी अजाब के दिन का अंदेशा है। उसके बावजूद उसके कौम एक भी नहीं माने, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, हम तो तुमको सरीह गलती में देखते हैं। अपनी जहालत की बिना पर ये लोग सोचते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही गलती पर है, और उनकी बीवी भी यही समझती थी और उनके बच्चे भी। फिर कैसे अल्लाह ताला ने हम सब में मुमताज़ बनाकर पैगंबर बनाकर भेजा, उसके हलक से ये बात किस तरह नहीं उतरती थी कि जिसका इजहार करने लगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़क़ालल मलअुल लदीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिथलना, के उनके कौम में जो काफिर सरदार थे वह जवाब में कहने लगे, हम तुमको तो अपने ही जैसा इंसान देखते हैं, आदमी पाते हैं। उस पर नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी रिसालत से जवाब दिया, क़ाल या कौमी लैसा बी ज़लालतिन वलाकिन रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। ए मेरी कौम, मैं गुमराही पर नहीं हूँ तो ज़रा भी गलती पर नहीं हूँ, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ रसूल हूँ। और फिर बड़े जामे और शरी अल्फाज में उन्हें अपने आमद का मकसद बताने लगे। उबल्लिगुकुम रिसालती व अनसहु लकुम आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं पहुँचाता हूँ मेरे रब की रिसालत और मैं खैरख्वाह हूँ तुम्हारे लिए, और मैं जानता हूँ अल्लाह की जानिब से मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। उसके बावजूद नूह अलैहिस्सलाम की कौम नहीं माने। औ अजीब तुम अनजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियंजुरकुम वलियत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून, क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मारिफत जो तुम्हारे ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात लेकर आए, ताकि वो शख्स तुमको डराए और तुम डर जाओ, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। नूह अलैहिस्सलाम की दीनी दावत कमज़ोर और नादान लोगों के दिलों को छू गई। ईमान को नूह अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए और अपने सारे मामलात खुदा पर छोड़ दिए, मुतमईन हो गए थे। इस हाल को बकौल शायर ये था, फ़अव्वलु रुजूअहुम सलामतु दीनहुम, के आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हाल देखकर नूह अलैहिस्सलाम के अमीर कबीर लोग हैरान रह गए, और फ़कीर लोग जो थे, वो जो गरीब थे, वो उन पर ईमान लेकर आए। उनके दिलो दिमाग पर शैतानी हुक्मरानी थी, यानी जो मालदार थे उन लोगों पर। अब तो ये नया खेल उनके हाथ में आ गया, और वो लोग नूह अलैहिस्सलाम को उसके गरीब नादान लोगों की जमात का हवाला देकर छेड़ने लगे, मजाक उड़ाने लगे, जो माली तौर पर कमज़ोर थे, मगर जिनके ईमान और इखलास ताल्लुक़ मा अल्लाह में उसकी क़ुव्वत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब काफ़ी लोगों की बेवकूफ़ी देखिए कि वो नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अनुमिनु लक वत्तबाअकल अर्ज़लून, क्या हम ईमान लाए ऐसे शख्स के लिए, आपके लिए, कि आपकी तबाह तो कमज़ोर लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं।
वमा नराका इल्ला बशरम मिसलना वमा नराका इत्तबाका इल्ला लदीना हुम अराजिलुना बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नु काज़िबीन। ये सूरह हूद की आयत है। हम तो तुमको अपने ही जैसा आदमी समझते हैं, देखते हैं और तुम्हारी इत्तबा नहीं करते लोग जो हम में बिल्कुल रजील है, यानी वही लोग इत्तबा करते हैं जो हमें बिल्कुल कमज़ोर और रजील है, जिनकी अकल अक्सर खफीफ होती है, फिर वह इत्तबा में बहुत सरसरी राय से हैं और हम तुम लोगों से बातचीत से ज़्यादा पाते हैं, बल्कि हम तुमको झूठा समझते हैं। कौम नूह के अमीर कबीर फाजिर लोग गरीब और नादार लोगों को कह बुलाते थे। इन गरीबों की पाकीज़ा फितरतें ऐश इशरत की आलूदगी से मुतकब्बिर थे, उनकी भूख को उनकी दावत खुदाबंदी से रोकते थे। इसलिए सारे कुफ़ार जमा हुए और उस पर इत्तफाक किया कि इन रजीलों को ईमान लाना हरगिज़ उससे रोका जाए। ईमान इनके शान शान नहीं है। अपनी ज़िद और हद धर्मी के अलावा उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों पर झूठ और मनगढ़ंत बातों का इल्ज़ाम लगाया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ उनको दिखाया ताकि उनकी मुर्दा ज़मीर जाग जाए, उनके दिलों पर पर्दा बेहिसी का नकाब उतर जाए, अल्लाह ताला की अज़मत मोहब्बत के नूर से मुनव्वर हो जाए, उस पर ईमान लेकर आए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम चारों नाचार अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी दावतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़रतु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअलु लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा व जअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन व जअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसातन लितस्लुकू फ़ीहा सुबुलन फ़िजाजा। कि अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मैंने रात दिन उनको नसीहत की, क्या तुम्हारा रब तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उनके कौम ये पूरे सुनकर और नाफरमानी करते ही रहे। उसके बाद अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। नूह अलैहिस्सलाम पौने 900 साल तक हरदम उन्हें दावत ईमान देते रहे। कई सदियां गुजर गया, कौम पर कौमें गुजर गई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान नहीं लाने की वजह से अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह तुम कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया और अल्लाह के हुक्म से वजअलिल फुल्क बिअयुनिना वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहीना, और तुम हमारी निगरानी और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया और उस कश्ती में लकड़ियाँ वगैरह से बनाया। अब तो वह भी ज़्यादा तमस्कुरा अंदाज में बोली, और पानी कहाँ है जिस पर तुम्हारी कश्ती चलेगी। मेरा ख्याल है या तो तुम दीवाना हो गए हो या फिर तुम खुदाओं का अजाब नाजिल हो गया है। ये अकल में आने वाली बात नहीं कि कश्ती और खुश्की पर चले। यह भी कौम ने मजाक उड़ाया। उसके बाद ज़मीन से भी पानी उबलना शुरू हो गया और आसमान से भी पानी नाजिल होना शुरू हो गया, और उसी कश्ती में तमाम लोग को अल्लाह ताला ने शामिल होने का कहा। आवाज़ थी सिर्फ पानी की लहरों की और कश्ती पर सवार मोमिनों की तस्बीह व तहलील की। इस तरह ईमान का तूफ़ान और कुफ्र व फिस्क व फजूर पर गालिब आ गया। पानी ने कश्ती को ऊंचा उठा लिया और फिर तूफ़ानी लहरों और मौजों ने कुर्राए अर्ज़ को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया, यहाँ तक कि ज़मीन पूरे पानी का एक गोला बनकर रह गया। हर जगह पानी गालिब आ गया। पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंच गया था। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी गर्क हो गई। वो मोमिनों के साथ कश्ती में सवार नहीं हो पाई। वो समझ रही थी कि उसका घर अपने पानी की तूफ़ानों से महफूज रहेगा, लेकिन आज अल्लाह के कहर से बचाने वाला कोई नहीं है। उधर नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए, सब मोमिनीन को भी सवार किया। उनके नज़र
اپنے بیٹے کنعان پر پڑا۔ اس نے کہا باہر قریب تھا کہ ان کی آواز سن سکتا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا، لیکن بیٹا کا خیال آیا اور بیٹا کو کہنے لگا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی اے میرے بیٹے زمین پر مت رہے۔ لیکن ان کا بیٹا جواب دینے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں عنقریب پہاڑ میں پناہ لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصی الیوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے حکم سے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اسی پر جس پر اللہ رحم کرے۔ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو ختم ہوئی اور وہ غرق ہونے سے نہ بچ سکا۔ اللہ کے حکم سے اسے کوئی پہاڑ نہ بچا سکا۔ شوکانی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کسی کافر کو بچانے کی کوشش کرتے جبکہ انہی کی بد دعا تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین الدیار۔